Business environment, when we study the different dimensions, we come to know what may be good for our company or what may not be. Sometimes it may be हमने पढ़ा और हमें पता लगा that जो competitor है, definitely all the data are available. When we are making the presentation, we try to find out all the figures and facts. So जब हम figures and facts को रखते हैं तो हमें समझ आता है कि यहाँ पर जो है competitor मुझसे better लेकर चल रहा है, तो I need to, मेरे लिए वो threat है, तो मैं अपना जो strategy है वो ऐसा बनाऊंगी जिससे कि I am able to combat him. Sometimes it may be opportunity, कुछ नया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंड मेरा बिजनेस उस चीज को जो है ले सकता है, तो आई कैन चेंज दैट इनटू अपॉर्चुनिटी. इट हेल्प्स इन द एफिशिएंसी. जिस कंपनी में प्रॉपर एनालाइज किया जा रहा है वहां पर क्या होता है, किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है. Recently, during the pandemic, there were so many companies which had adopted work. Most of the companies had adopted work from office, work from home. And later on, एक ऐसा भी time आया जब आपका जो है एक ऐसा भी time आया when many of the companies opted back. That was a change. तो companies ने कुछ ऐसे strategies बना लिए, किसी ने 50-50 कर लिया, किसी ने 100% कर लिया, किसी ने रिमोट से काम करने का उन्होंने ऐसे नए नए वो बनाए कि जो विमेन हैं जिनके घर में बच्चे हैं उनको हम पहले वर्क फ्रॉम होम वाज नॉट अ कल्चर इन इंडिया. हमारे यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम वाज नॉट अ कल्चर इन इंडिया, बट आफ्टर दिस पैंडेमिक दिस वाज पॉसिबल. तो बेटा these things जो है, if we are scanning the business environment, that helps any person to understand and frame the policies as required. Today we will be starting with the components of business environment. Today we will be starting with the components of business environment. अब components को जो है आपका आ सकता है क्वेश्चन में 1 मार्कर में identify या फिर identify and explain भी आ सकता है. On a broader way, social, economic, social, technological, political and legal. I had already discussed them in general. Now let us start with economic. Please, इसमें जितने words दिए हुए ना, all the words which are given, they will be there somewhere in your question. They would be there somewhere in your question and you have to find out this but economic में एक hint ये है, wherever money is involved, that pertains to economic environment. Interest rate, अभी recently RBI had revised the repo rates. तो हो सकता है कि वो ज़्यादा हो गया तो हमारा परचेसिंग पावर नहीं होगा. भाई मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही इंटरेस्ट दे सकती हूँ, EMI दे सकती हूँ. इफ आई एम नॉट, अगर वो मेरे बस में नहीं है तो हो सकता है कि आई मे नॉट बाय द प्रोडक्ट, तो कंपनी को लॉस होगा. इफ द कंज्यूमर्स आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट सो दे विल बी इन लॉस. Inflation, for the past few days, India also has been, and in fact, I came to know that in US right now, the inflation is very very high. हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली अब हर चीज का दाम बढ़ा हुआ तो why will people buy them? Why will people buy it? Changes in disposable income of people. Disposable मतलब every person has an income. से आपके पापा किसी इंसान की इनकम जो है वो 1 लाख है. तो now what will happen is, out of that 1 lakh we do not spend everything. We have certain limits. हमारा एक बजट होता है, तो हम कितना एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, दैट इज आपका डिस्पोजेबल. हम कितना कर सकते हैं.
स्टॉक मार्केट इंडिसेस, वैल्यू ऑफ रुपी, अभी पीछे इंडियन वैल्यू वाज बिट लो, that affects the management practices in a business enterprise. Short term and long term interest rates, डेफिनेटली मैंने अभी आपको जैसे बताया कि किसी भी चीज की अगर रेट, मान लो कि घर है, आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट स्कीम, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है फॉर द लोन दैट इज लेस। तो डेफिनेटली पीपल अब सोचते हैं कि चलो यार घर खरीद लेते हैं, जितने में हम लोग जो है वी आर गिविंग द रेंट, उससे तो अच्छा कि हम घर खरीद लेते हैं। दैट कैन बी, उससे हमारा इकोनॉमिक, मतलब उससे किसको फायदा हो रहा है? कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, स्टेट होल्डर्स को। सिमिलरली कार्स, similarly a rise in the disposable income of people due to increase in GDP of country increases demand। 1970 में पूछो कितनों के घर में टेलीविजन होता था? पूरे मोहल्ले में एक के घर में होता था। कितने घरों में गाड़ी होती थी? किसी के पास भी नहीं। Only the lawyers or the doctors, because the people did not have the disposable income। Today घर के अंदर आई थिंक हम 4 जने तो 4 के पास 8 मोबाइल्स होंगे। Everyone is having, because due to the increase in the GDP, हम लोगों की सैलरीज बढ़ी हैं, तो हमारा भी जो स्टेटस है वो बढ़ गया है। High inflation rate results in constraints on business enterprises as they increase the various cost of business। भाई अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल के दाम से कितना फर्क आया बताओ? सब्जी का दाम भी बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पेट्रोल को यूज करता है, तो नेचुरल है कि जो वो लेगा सब्जी वाले से वो ज्यादा लेगा, तो सब्जी वाला क्या करेगा? हमसे ज्यादा लेगा। दिस इज अ चेन, दैट इज। सेकेंड इज, ये आपका जो है इफ यू सी दीज आर सम ऑफ द व्हाट यू कॉल एज कंपोनेंट्स, कभी कभी आता है सोशल, ऑल द सोशल फोर्सेस। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द मैरिज सीजन्स, क्लोथ्स की, परफ्यूम्स की, मतलब जो जो चीज़ें मैरिज से रिलेटेड है उनका मतलब कि दे आर मोर, एट द सेम टाइम उस वक्त उनकी दाम भी ज़्यादा हो जाते हैं। द वैल्यू सिस्टम्स, द ट्रेडिशंस, द सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व, उस दौरान ग्रीटिंग कार्ड की कंपनीज, स्वीट मेकर्स, कॉन्फेक्शनरी मेकर्स, टेलरिंग आउटलेट्स, इनका फायदा होता है। यानी कि अगर आपका बिजनेस इससे रिलेटेड है तो आपको फायदा होता है। इन इंडिया वैल्यू सिस्टम ऑल्सो हैज हाई एस्टीम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। मीन्स अब आप पूछोगे कि मैम इसे बिजनेस से क्या लेना देना, तो इन बिजनेस टर्म्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट। कभी कभी आपने देखा होगा कोई मूवी बन गई विच इज नॉट इन फेवर ऑफ द ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो दे शोर मचाते हैं वो। समटाइम्स कोई बिजनेस ऐसा है जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो उस बिजनेस को लॉस होता है। दैट मीन्स all the practices, value systems, they are all the opportunities and threats. For example, the health and fitness trend has become popular among the urban jewelers, और इसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड, जिम, बॉटल्ड वाटर, फूड सप्लीमेंट्स, ये सब ज़्यादा हो गए हैं। यानी कि इन बिजनेस में जो लोग इस बिजनेस में उनको फ़ायदा हो रहा है, और इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज उसकी तरफ जा रही हैं। They are going towards that. Third, technological environment, scientific improvements, innovations. As I said long back,
We used to stand in the queues. Today we don't need to go out of our home to book anything. And जिन कंपनीज ने इन सिस्टम को पहले अडॉप्ट किया ना, वो फायदे में रहे. And those companies which did not adopt these systems, they were in loss. No doubt traditional business हमेशा रहता है, but then when pandemic आया तो ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा हो गया. आपने देखा होगा ऑनलाइन डिलीवरी लाइक ग्रोफर्स एंड ऑल, ये कितने ज़्यादा हो गए हैं. सो when a company is taking, और कंपनी को देखना चाहिए कि पीपल कैसे ले रहे हैं. आज एक जो किराने की दुकान वाला है वो रोता है if he is not able to deliver. On the other hand, those companies like Blinkits and all, they are in, वो फायदे में है. रीजन क्या है? रीजन ये है कि they have adopted the technology easily. For example, recent technological advances in computers and electronics have modified the way in which companies advertise their products. It's now to see the computerized information kiosk, www multimedia, highlighting the virtues. Similarly, retailers have direct links with retailers, having direct links with suppliers who replenish stock when needed. Manufacturers have flexible manufacturing system. Airline companies have internet and web pages जहाँ हम फ्लाइट टाइम, डेस्टिनेशन, फेयर, जो मैंने अभी आपको बताया, अब हमें जाकर दुकान में या फिर क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता. And that is why every company, every airline, everyone is having their own app. In addition, continuing innovation in different scientific and engineering fields such as lasers, robotics, biotech, food preservatives, medicine, telecommunication, many of them have provided opportunity as well as threats to different enterprises. भाई एक आएगा तो दूसरे को जरूर फर्क आएगा. Shifts in demand from vacuum tubes to transistor, from steam locomotive to diesel, from fountain pens to ballpoint, from propeller airplanes to jet, typewriter to computers. और इनकी वजह से न्यू बिजनेस आए, और जिन्होंने उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को पहले लिया, दे वर इन, क्योंकि एवरीवन वांट्स ईज, कंफर्ट. पहले तो हमें एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता था, आजकल नहीं है. Third, political. This is one of the most confusing, where the students really have lots of problems. क्योंकि political and legal में कुछ words similar है. Political means the condition of the political environment of a country. The elected government, the representatives, how they are acting towards the people. The significance of political condition in business success lies in the predictability of business activities under stable political. अब जैसे for example there is problem in श्रीलंका, तो नेचुरल है कि वहाँ का जो इंस्टेबिलिटी है, तो इंस्टेबिलिटी की वजह से, वहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, वहाँ पर जो बिजनेस है, दे हैव सफर्ड अ सेटबैक. वॉर हो रहा है यूक्रेन में, मोस्ट ऑफ द जो मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे हैड टू शट डाउन देयर ऑपरेशंस. सम ऑफ देम हैव विथड्रॉन बिकॉज वहाँ की जो इस वक्त में जो भी गवर्नमेंट है, इट इज नॉट एबल टू शेल्टर दोज कंपनीज. तो उस कंपनी को लॉस हो गया ना. On the other hand, there may be uncertainty of business activities due to political risk, threats to law and order. So,
Political stability thus builds up confidence among people to invest in the long term projects for growth of economy. जो elected government है, what is its attitude towards business? They may be designing some new policies which may be in favor or which may be against the business. So that is one of the key factor, that is one of the key environment where the, क्योंकि business को lobby करना पड़ता है with the political area, and अगर वो कर रहे हैं, if the decisions taken are not in favor, there is in मतलब कि they are doing certain changes जिससे business को loss हो रहा है, that can be there. Then unstable government like it is right now in Sri Lanka, or you can say in Ukraine, that is also. In your paper you might be having these three, मतलब यूक्रेन का एक हो गया तो वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, या फिर चेंजेस इन द पॉलिटिकल व्हाट यू कैन से एटीट्यूड टुवर्ड्स अ गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो आपका आ जाता है पॉलिटिकल में. एरिया देखिए, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, द डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब अगर गवर्नमेंट जो है वो हमारी बात सुन रही है, गवर्नमेंट जो है इट इज़ गिविंग द सपोर्ट, मतलब कि वो ऐसे ऐसे मतलब कि रूल्स बनाती है जिससे बिजनेस को फ़ायदा हो, तो देन it will be favorable, but if it is not, then it will be unfavorable political situation. Political environment जब आएगा आपके पेपर में तो एक चीज याद रखना, that it would be the decision, the legislation passed by the government. दैट इज मतलब कि वो जो डिसीजन लिया है जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो वो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वो लीगल में आएगा. गवर्नमेंट कैसे अप्रोच करती है दैट इज पॉलिटिकल, बट व्हेन दे मेक सर्टेन लॉ, व्हेन दे मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स, व्हेन दे pass certain legislation, that would come under legal, because many times this question is wrong by the students, in fact by the teachers even. The decision, the attitude is political, but when it is implemented through various law, that is aapka legal. Legal environment includes various legislations passed by government, order, administrative orders, court judgments, as well as decisions rendered by commission on agencies at every level, जैसे Consumer Protection Act CPA, Labor Act, any legislation passed by government. ये जो इस वाले को तो आप लोग इतने अच्छे से लर्न करना, and always quote it from the NCERT. CPA, Consumer Protection Act 2019, Indian Labour Law, International Labour Law. Any commission has been set up और उन्होंने कोई मतलब की decision दिया है, these are all legal. लीगल का मतलब है इट इज इम्पेरेटिव, मतलब कि मैनेजमेंट को उसको जो है लागू करना पड़ेगा. दे हैव टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ, दे हैव टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ. इट इज मस्ट, it is must. Therefore, an adequate knowledge of rules and regulations formed by the government is a prerequisite for better business. Non-compliance can lead to legal problems. Recent, मतलब 10 years back, I think, government ने एक law pass किया था for the gym owners. Many of the people were not aware. They were not aware. तो जब open हुआ तो many of the gyms had to give penalty and many had to close down. उन्होंने certain laws बनाए थे, what kind of food you can give, what kind of instruments you can keep. So we must know जो भी हमारा business है उससे related law. जैसे स्कूल रन करना कोई मजाक नहीं होता. मेरी जो फ्रेंड है she tells me
that there are so many laws that you have to, बच्चों के लिए अलग लॉ है, पेरेंट्स के लिए अलग लॉ है, वेयर यू आर मतलब कि आपका स्कूल जहाँ सिचुएटेड है उससे रिलेटेड अलग लॉ है, सेफ्टी के लिए अलग लॉ है. यू मस्ट बी अवेयर. और उनमें कोई भी चेंज होता है, पॉजिटिव होगा तो फायदा होगा, नेगेटिव होगा तो नुकसान होगा. In India, Constitutional Provision Company Act 2013, Industrial Development Act 1951, Foreign Exchange Management, then Export and Import, Factory Act, Trade Union Act, Workman Compensation Act, Consumer Protection Act में अब आप लोग जो है 2019 लिखोगे, 86 नहीं लिखोगे. 86 is now not valid. So these are some of the acts which are already there. For example, advertisement of alcohol beverages prohibited, and it should not be advertised in the national TV, that too during the prime time. अगर आप करते भी हो तो आप प्राइम टाइम में नहीं कर सकते हो जब आपके बच्चे बैठे हुए हैं. Similarly, there are advertisements including the packets of cigarettes carrying the statutory warning like आपको जरूरी है cigarette smoking is injurious to health. इवन आपने देखा होगा जब मूवी स्टार्ट होती है तो मूवीज में भी स्टार्टिंग में लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो this has to be. Similarly, all the entertainment industry have to, no animal has been harmed during the filming of this movie. ये लिखना पड़ता है. बीच में क्या हुआ था, I'll tell you. कौन सी मूवी थी, आई थिंक पद्मावती. जो पद्मावती मूवी थी उसका रियल नाम तो कुछ और था. And then what happened, many of the people belonging to that particular sect, they said कि this is against, ऐसा नहीं हुआ था. And जोधा अकबर में भी हुआ था. Now the writer अब इतनी सारी चीजें चेंज नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसने कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप उसमें लिख दो कि दिस इज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर. कई बार ऐसे आपको देना पड़ता है. सिमिलरली व्हेन यू आर एडवर्टाइजिंग द बेबी फूड, आपको लिखना पड़ता मदर्स मिल्क इज द बेस्ट, एंड एन एडवर्टाइजर हैज टू फॉलो दीज. एंड इफ एनी चेंज इज कमिंग, अगर कोई चेंज आता है तो देन दैट चेंज हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन योर कंपनी. ऑल दीज पोर्शंस आर डिलीटेड. आपका इसके बाद आता है डिमोनेटाइजेशन. This will be there in your syllabus. The remaining is not there. Demon is in your syllabus. Now हम लोगों ने पढ़ा था economic environment. Means anything which is related to money. In the economic environment there was a major decision taken. अब इसमें पेपर में यही क्वेश्चन आया था कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो आपका लीगल एनवायरनमेंट माना जाएगा, इकोनॉमिक माना जाएगा, या फिर वो आपका पॉलिटिकल माना जाएगा. There was lots of what we call as debates. Demonetization is a political decision. It is a political decision, but इसमें जब क्वेश्चन ये आता है कि ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन उसका नुकसान हो गया, वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा. बट डिसीजन इज पॉलिटिकल. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन November 8, 2016 with profound implication for the Indian economy. 501,000 notes were demonetized with immediate effect, ceasing to legal tender except for a few specified purposes such as paying utility bills and all. क्यों किया गया था? This led to 86% of money in circulation invalid. The people of India had to deposit the invalid currency in the banks, which came along with restrictions placed on cash withdrawals, then convertible. मतलब देयर वॉज वन, आप एक दिन में इतना ही कर सकते हो, एक इंसान इतना ही कर सकता है.
Why it was done, why this decision was taken. This decision was taken to curb corruption, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मनी वी कॉल, ब्लैक मनी एंड वाइट मनी. व्हाइट मनी आपका होता है जो आपने पैसा दिया और डायरेक्टली बैंक में चला गया, वॉट एवर इट इज देयर, इट इज अकाउंटेबल. And whenever we are making the payment, we are making it through the digital mode or we are making it through the check, जिसका हिसाब बैंक में होता है. एंड दूसरा होता है ब्लैक मनी, जो पीछे से दिया जाता है. People don't deposit it in the bank, they buy it, they buy something else. फॉर एग्जाम्पल आपका एस्टेट्स है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि इस एरिया का रेट ये होगा. मीन्स अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करता है. मीन्स मान लो यू आर इन दिलशाद गार्डन, तो आपका जो रेट है वो सर्कल रेट है ये, तो द प्रॉपर्टी रेट शुड बी समवेयर अराउंड 40 लाख टू 50 लाख. बट ड्यू टू करप्शन व्हाट इट हैपेंस इज इट वुड गो टू 1 crore. ठीक है, वहाँ लोग अच्छे रहते हैं, 1 crore का है. Now this 1 crore will not be given as 1 crore to the buyer or the seller. तो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है उस रेट को तो वो लोग जो है थ्रू द चेक या फिर थ्रू नेफ्ट ले लेंगे, और जो बाकी होगा वो कहेंगे उसे कैश के थ्रू दो. क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस को आप, यू कैन नॉट कीप अ चेक ऑन कैश ट्रांजैक्शंस. और ऐसा बहुत होता, मतलब आई एम जस्ट गिविंग वन इंडस्ट्री, दिस इज देयर इन ऑल द इंडस्ट्रीज. Counterfeiting the use of high denomination notes for illegal activities, specifically the black money generated by income that has not been declared to the tax authority. And then when you are declaring कि आपने इतने का सामान खरीदा, तो you have to pay the tax also. तो लोगों को टैक्स नहीं देना है तो वो क्या करते हैं, they would not be showing the money. अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता, अभी भी होता है, बीच में बंद हो गया था फिर होना शुरू. सो दैट इज वाई, एंड इट वॉज ऑल्सो सेट कि हमारे जो 500 रुपीज के नोट हैं दे आर इन सर्कुलेशन, उसके फेक नोट जो हैं दे आर इन सर्कुलेशन एंड दे आर बीइंग यूज्ड बाय द फॉर द टेररिज्म एक्टिविटीज. Demonetization is viewed as a tax administration measure. Cash holdings arising from declared income was readily deposited and exchanged for new notes. But those with black money had to declare their unaccounted wealth and pay. अब लोग अपने घरों के अंदर उसका नाम क्या, दीवारों में भी छुपा के रखते थे. अब वो पैसे कहाँ से आए थे? What is your income mode? Because if you are depositing more than 49,000 in the bank, you need to pay your, you have to give your PAN card number. अगर आप डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, क्यों किया, कहाँ से आया? Demonetization is also interpreted as a shift on the part of government, indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. It also led to tax administration channelizing saving into formal. लोगों, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि घर में रखे हुए हैं कैश, स्पेसिफिकली विमेन का ही बड़ा एक मतलब होता है. So much of the cash that has been deposited is bound to be withdrawn, but some of the new deposit schemes were offered. अब घर में हमने रखा हुआ है, हमारा एक फाइनेंशियल मार्केट करके एक आपका एक चैप्टर आएगा लास्ट में. हाउ डू, आपने 10th में भी पढ़ा था, हाउ डू बैंक्स सर्कुलेट द मनी. जो हम लोग सेविंग्स में देते हैं 15% वो लोग रखकर 85% दे एक्सटेंड एज अ लोन. और अगर लोगों ने घर में रखा होगा तो बैंक्स के पास पैसा नहीं होता. और इंडिया इतना रिच है कि पीपल हैव द मनी. Another feature of demonetization is to create a less cash or cash light economy through a financial system. जैसे आजकल हमारा बेसिक मैक्सिमम जो है सब लोग जी पे या फिर पेटीएम, दे आर यूजिंग सर्टेन कैश लाइट इकोनॉमी.
though there are arguments against this as digital transaction requires cell phone पॉइंट ऑफ सेल होता है वो जो मशीन जिस पे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को वो करते स्वाइप करते हो. देन यू नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी. On the contrary, these advantages are counterbalanced by understanding that it helps people into formal economy. No doubt. देखो इसका तो नुकसान तो है ही है. Those people who are not having all these, वो लोग क्या करेंगे? Digitalization has broadly impacted three sections. The poor, who are largely outside the digital economy, the less largely, the less affluent. तो इनको क्या किया गया था? इनको डिजिटलाइजेशन कैसे सिखाया गया था? गवर्नमेंट ने जनधन योजना स्टार्ट की थी. इन लोगों को रुपए कार्ड दिया गया था एंड दे वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू यूज. नाउ सेविंग्स बैंक के अलावा पोस्टल जो आपके मतलब कि गांव रूरल एरियाज वगैरह में क्या होता है, इवन द पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो ऑफर्स ऑल द फैसिलिटीज ऑफ अ बैंक. Even now the postal office के जो services and they are also providing you with the cash cards. मतलब जिन लोगों के लिए मुश्किल था उनके लिए नए schemes बनाए गए थे. Now most of the people are having the direct card payment or you can say the digital payments, wallet payments. तो जो भी आपका transaction होता है that is recorded in the banks. And if anything which is in the suspicion, immediately banks उन पर जो है they can take the charge. आपका income जो proof है और आपका जो पैन कार्ड है वो उससे associated है. तो any circulation which makes suspicion that would be caught. मान लो मेरे बैंक में किसी ने 50 लाख रुपए डाल दिए, immediately I'll be called कि आपके पास ये 50 लाख कहाँ से आए. And then एक amount के बाद if I am keeping something in the bank then I have to pay the taxes also. That's it. Now what was the impact of demonetization? Decline in cash transactions, bank deposits increased, and increase in financial savings. Private wealth declined since some high demonetized notes were not returned and real estate prices fell. ये मैंने आपको भी बताया था कि सबसे ज़्यादा आपके रियल एस्टेट में ये सबसे ज़्यादा रहता था. इनफैक्ट मेनी ऑफ द पीपल सेड दैट टू स्टॉप दैट गून राज दिस वाज टेकन. पब्लिक सेक्टर वेल्थ में इतना प्रॉब्लम नहीं आया था. डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द कॉबलर टू द टॉप मोस्ट एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग द डिजिटलाइज्ड पेमेंट्स. रियल एस्टेट में प्राइसेस डेफिनेटली डिक्लाइन हुआ था. देयर वर मतलब पहले तो आउट ऑफ द रीच था बट नाउ दे आल्सो हैव टू थिंक. टैक्स कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि अब लोगों को डर रहता है. दिस इज demonetization. The decision was a political decision but उसका जो impact था that was completely economic. मतलब परचेज ये जो इम्पैक्ट आया है ये जो हमने अभी पढ़ा है दीज आर ऑल द इकोनॉमिक कंपोनेंट्स. ड्यू टू सी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है. ड्यू टू द डिसीजन टेकन बाय नरेंद्र मोदी ऑफ डिमोनेटाइजिंग द 500 and 1000 note, many of the banks said that there has been decline in the cash transactions. The bank deposits have increased. तो नेम द टू डायमेंशंस. एक आपका पॉलिटिकल टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड सेकेंड आपका इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक. प्लीज रिमेंबर दिस. सो दिस इज इन ऑल what we call as the chapter business environment. Means first, what is business environment? The totality of all the individuals, institutions and other forces. मतलब जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हैं वो और जो इनडायरेक्टली जुड़े हैं वो भी. अब
सप्लायर जो है, इफ़ ही हैज़ इंक्रीज अ मनी, इफ़ ही हैज़ इंक्रीज अ कॉस्ट, तो नेचुरल है कि मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। पेट्रोल का प्रोडक्ट बढ़ गया तो नेचुरल है कि मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। On the other hand, there might be some changes in the government's policy, there might be some changes in the people's taste, यानी कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल, इन्वेस्टर ने हटा लिया, इंटर रिलेटेड, एक में प्रॉब्लम आई तो दूसरे में भी आएगी। लाइक पेट्रोल का दाम बढ़ा तो सब्जी का भी दाम बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन का भी दाम बढ़ गया। पहले मैं टिकट 10 रुपए का ले रही थी, नाउ आई एम टेकिंग फॉर 15 रुपीज। इट इज इंटर रिलेटेड, इट्स डायनामिक, it is dynamic, means it goes on changing and you cannot predict because it is very complex in nature. It's very complex. It's and it is relative, मतलब एक like in Delhi चाट ज़्यादा है, अगर चाट पापड़ी के ऊपर कम दिल्ली के अंदर डालोगे तो वहां पर होगा, बट द सेम थिंग विल नॉट बी देयर इन अनदर एरिया। साड़ीज आर बेटर इन इंडिया, इट इज नॉट देयर इन अदर कंट्रीज। तो प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, इट डिपेंड्स। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सो दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। अगर कुछ नया है हम अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। जब मास्क मैंडेटरी हुए, मेनी ऑफ द कंपनीज स्टार्टेड मेकिंग द मास्क। इनफैक्ट जो आपके विमेन अपैरल हैं उन लोगों ने मैचिंग, क्योंकि हम लोगों को मैचिंग पहनने की आदत है, तो उन्होंने मैचिंग जो है वो बनाने शुरू कर दिए, यानी कि उनको फायदा हुआ बिकॉज विमेन लव देम, तो दे गॉट द अपॉर्चुनिटी। देन जो सैनिटाइजर्स बनाते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिली क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था, बट जिन चीजों को गवर्नमेंट ने मना किया उनके लिए दैट वाज अ थ्रेट। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस एंड असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी, एंड डेफिनेटली ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। Now when it comes to the element or it comes to the component, we have economic, social, technological, political and legal. India is having the mixed economy, public sector and private sector. Anything, if there is a change in the interest rate, inflation ज़्यादा या कम हुआ, मतलब चीज़ों के दाम कम होंगे तो लोग खरीदेंगे, इन्फ्लेशन होगा तो नहीं खरीदेंगे। हमारा डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आजकल आप देखिए बाहर, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन विच हैज़ कम इन द पेपर ऑल्सो, आजकल लोग जो है आउटसाइड फूड खाना, रेस्टोरेंट्स जाना, देन आपके रिजॉर्ट्स में जाकर रहना, फॉरेन ट्रिप में जाना, इट हैज़ इंक्रीज एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम दे हैव गॉट। ये पेपर में यही क्वेश्चन आया था, स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव, रुपी का, मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी विल कम इनटू इकोनॉमिक। देन हमारा ट्रेडिशन, हमारे टेस्ट, हमारा एक्सपेक्टेशन, as I told in the last class की in 1970s bell bottom was very famous, again it has come now when we were हम लोग आपके जैसे थे तो उस ज़माने में जो सलवार बनती थी ना दैट वाज वेरी स्पेशल, मतलब उसकी जो नीचे की वो बनते थे दैट उसमें भी डिज़ाइंस होते थे। फिर एक काम, मतलब एक टाइम था उसमें बड़े वाले, मतलब पैर जो है वो बड़े होते थे, उसके बाद एक टाइम आया छोटा हुआ, फिर पजामीज का आया, पजामीज मतलब कुर्ती वाला चूड़ीदार, एंड नाउ इट इज़ कम्प्लीटली हम लोग जो है उसके रेडीमेड ले लेते हैं। So these are the changes in the social taste. Technological, anything which is related to scientific or technical innovations. इसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, WWW से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है,
Political is the stability of the government's attitude towards the business. That. And legal is any law, any administrative order, any court judgment, any decision of commission. जैसे मैंने बताया टोबैको चूइंग, आजकल आप मूवीज देखोगे तो स्टार्टिंग में लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये उनके लिए कंपलसरी है, दे हैव टू ऐड ऑन. देन last but not the least is demonetization. Demonetization was a government's decision, and according to the government it was because they wanted to curb the corruption. They wanted to make a digital or cashless economy. They wanted to pull up the accounts which were unaccounted money रहता है, that was there. They wanted to stop the illegal circulation of the notes. ये सारा उनका रीजन था. एंड उससे क्या हुआ है, डेफिनेटली हमारा जो मतलब अकॉर्डिंग टू द what you call as the income tax officers authorities, they say कि there has been an increase in number of people who are now declaring the wealth and declaring the income. पहले ऐसा नहीं था, because now they cannot move with the cash to a large extent. तो फायदा हुआ है. It has also introduced the digital transactions in rural area. रुपे कार्ड वगैरह जो है which was not that much in use, now that is there. पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज आपके ज़्यादा हुए हैं तो डेफिनेटली आपका जो क्रेडिट और जो आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है वो भी ज़्यादा हुआ है. यस, सम ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक एस्टेट्स, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी वगैरह रियल एस्टेट वगैरह को नुकसान हुआ, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. डेफिनेटली किसी भी चीज़ को हमें जो है मतलब कि बैलेंस करने में it takes time, but instead of going down towards the economy we have now been stabilized. I think 2000 जब ये हुआ था तो people did not know what was a digital transaction. Today people don't want to have a cash transactions. they simply say मैम पेटीएम दे दो, पेटीएम कर लेते हैं. सो दैट हैज़ इम्प्रूव्ड. और फिर डेफिनेटली बेटा देखो मेरा बैंक में अगर पैसा होता है तो मैं विड्रॉ कम करूँगी. आई नो वेयर टू विड्रॉ, हाउ मच टू विड्रॉ. डेफिनेटली इट ऑल्सो हेल्प्स कॉमन पीपल के लिए, सेविंग्स को पूल करता है. फॉर द बिजनेस अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा देता है. सो दैट इज डिमोनेटाइजेशन. This is the overall chapter, business environment. You can expect the questions from general and specific वाले में आप कर सकते हैं. Then identify and explain the significance. और उसमें जो फर्स्ट मूवर वाला होता है ना वो कई बार पेपर्स में आता है. थ्रेट फर्स्ट मतलब एक पूरा क्वेश्चन है जिसके अंदर था CD ROM वाला था कि ही हैड कम फ्रॉम जर्मनी. उसने यहाँ पे CD ROM को जो है इंट्रोड्यूस किया था. उसने देखा था कि डिजिटली लोग नहीं देखते तो उसने CD ROM को इंट्रोड्यूस किया था. लेटर ऑन बहुत सारे लोग उस मतलब कि कॉम्पिटिटर के आए थे. तो व्हाट आर द, तो उसके अंदर आपका जो है दीज वर द, तो आपका ये आ सकता फर्स्ट मूवर एडवांटेज, थ्रेट. देन जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द component of business environment, the element of business environment. Anything related to economy, economic, anything related to taste, social, anything related to decision made by government, political, any enact, legal, anything in the science will go to technology. So that is the entire chapter which we call as business environment.